fit for the projectile motion projected at any angle with the horizontal. Okay, there are some terms we have discussed like time of flight, maximum height of a projectile, horizontal range traveled by the projectile, and the path of the trajectory. These are the four terms basically that we are going to derive here. Okay, for an angular projection of projectile. Okay, so let's start. First, we will discuss about path of projectile. Path of projectile, which is parabolic in nature. And for the path of projectile, when it is projected at an angle, that is angular projection, we are going to draw a diagram here. 2 points, as we all know, O and O dash, point of projection and point of landing. You gave a velocity u, initial velocity u, to the projectile and projected at an angle theta, which is the angle of projection. This velocity resolves itself in two components, ux and uy. Ux and uy. Ux, initial velocity, horizontal component. Uy, initial velocity, vertical component. Is that clear? Ux value will be, ux is equal to u cos theta and uy will be equal to u sin theta. Clear? So, it is a projectile. An object is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal, and it covers a path like this. ये इस तरह के पाथ को कवर करता है. ओके, नाउ सपोज हम सपोज करते हैं कि आफ्टर स्टार्ट after a time small t, projectile reach at a point P with coordinates x, y. हमें मालूम है कि जब प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करता है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन दोनों वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में रन करेगा, और इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही डिस्टेंस कवर करेगा. सो स्टार्ट करने के बाद, आफ्टर स्टार्ट, ये t सेकेंड्स के बाद इस पोजीशन को अप्रोच करेगा. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सपोज, एंड इट इज द पॉइंट P, and what is the coordinates of P, x and y? What it means? It means that the horizontal distance traveled by the projectile in time small t, horizontal distance is equal to x and vertical distance is equal to y. At this position, it is the horizontal distance P xy with the coordinate x, y. So what is the xy? Xy is the distance traveled by the projectile in horizontal and vertical direction after in a time small t. Okay, so this is the horizontal distance, let it be x, and this one will be vertical distance traveled by the projectile, it is y. Okay, तो ये हमारा डायग्राम है कि आफ्टर टाइम t, after projection, it travels for the time interval t seconds like this and approaches to a point P with coordinate x, y. X, y is, it is the horizontal distance traveled by the projectile, that is x from the origin. It is the vertical distance traveled by the projectile, y. Okay, these are the assumptions. Now, अब हमें करना क्या है? अब हम सबसे पहले इस टाइम t के लिए इन दोनों ही डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं. हम सबसे पहले ux, इसकी हेल्प से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करता है इन टाइम t, ये कैलकुलेट करेंगे. मींस हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल. देयरफॉर फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
Horizontal distance, it is due to horizontal velocity, and horizontal velocity remains constant throughout the motion because acceleration acts vertical, perpendicular to the direction of velocity, and therefore horizontal distance, so distance traveled is equal to speed multiply time. So distance traveled in time t, it travels a horizontal distance x is equal to speed. What is the horizontal velocity? Ux multiply what is the time after start? It is time t. So x is equal to u cos theta multiply t, and therefore we can write small t is equal to x upon u cos theta. Is that clear? तो आपको यहाँ से टाइम जो आपका स्मॉल टी है जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हम टी को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ इट इज फॉर वर्टिकल डिस्टेंस, फॉर वर्टिकल डिस्टेंस। व्हाट अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस? Vertical distance y is traveled due to vertical initial velocity uy, and therefore using h is equal to ut minus half g t square. That means h vertical height, vertical motion, u initial velocity, and t the time for which we want to calculate height traveled. Okay, so h यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? मींस वर्टिकल डिस्टेंस t सेकंड्स में उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? y. इट इज इक्वल टू u विल बी uy इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, इसलिए g की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? y इज इक्वल टू uy इज u sin थीटा and multiply what is the value of t। जैसा हम लोगों ने अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट किया था, वहां से हम लोगों ने t की वैल्यू निकाली थी, सेम वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करने जा रहे हो। सो t इज x upon u cos theta, where minus 1/2 g t square। what is t square? अगेन t की वैल्यू आप लिखेंगे x upon u cos theta and स्क्वायर, दिस वन। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा y के लिए। अब इसे थोड़ा सा हमें सिंपलीफाई करना है। हाउ विल यू सिंपलीफाई इट? u sin थीटा, लुक u कैंसिल आउट, तो यू विल गेट x sin थीटा अपॉन cos थीटा, इट विल बी tan थीटा, एंड माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? x स्क्वायर के टर्म्स में इसको लिखने जा रहे हैं। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका एक एक्सप्रेशन है जो आप वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन अ टाइम इंटरवल स्मॉल टी, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा है उसमें अगर आप देखो y दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस इज इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x। जो y है वो x के क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है, और ये जो y है अगर x के क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो जो मैथ्स लिए हैं वो जानते होंगे ये किसका नेचर है? ये पैराबोलिक पाथ का नेचर है। ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला को शो करती है, एंड देयरफॉर क्या हम कहते हैं? वी ऑल नो दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला इन नेचर, और यहां से हम उसको मैथमेटिकली शो भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इट इज द इक्वेशन फॉर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आप ये भी शो कर सकते हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला इन नेचर। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द अर्थ सरफेस। क्लियर? दैट इज एंगुलर प्रोजेक्शन। सो टाइम ऑफ फ्लाइट
हम सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं फॉर द एंगुलर प्रोजेक्शन। सेम वही डायग्राम है, बार बार सारी चीजें घूम के वैसे ही आएंगी, इसलिए ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड द वेलोसिटी u resolve itself in two components ux and uy. This one, it is the path of projectile. Clear? अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? तो ये हमने आपको बताया है कि द ड्यूरेशन फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर आफ्टर द प्रोजेक्शन एंड बिफोर लैंडिंग, दैट टोटल टाइम इज कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हम सब इसको दो पार्ट्स में निकालेंगे। हम सपोज करते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम स्मॉल टी द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू मैक्सिमम हाइट h max, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट होने का मतलब ये है कि आफ्टर प्रोजेक्शन ये वो मैक्सिमम हाइट है जहां तक आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो ट्रेवल करेगा। मैक्सिमम हाइट राइज करता है, इसके बाद वो डाउनवर्ड मोशन में स्टार्ट कर देगा, वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। और अगर वो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को गेन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ ux लाई करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही उसकी टोटल वेलोसिटी भी है। और यहाँ पे आपको मालूम हो गया जो vy है वो क्या होना चाहिए, जीरो। vy क्या हो गया, जीरो, मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो। आप इसको ux या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू है vx, जो ux मींस इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा। उसका रीजन आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेरी नहीं करती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उसको, अब इन सारी चीजों को यूज करके हम इस पोजीशन के लिए फ्लाइट टाइम निकालने जा रहे हैं। हमने क्या किया, हम इस इक्वेशन को, इसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने इस पूरे पाथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो मैक्सिमम हाइट की लाइन है, वर्टिकल हाइट, ये इस पूरे पैराबोलिक पाथ को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, डिवाइड कर देगी। ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में प्रोजेक्टाइल आपका अपवर्ड मोशन करेगा, सेकंड हाफ में प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो हमने यहाँ पे इसके लिए एजम्पशन पढ़ा था स्टार्टिंग में। क्या एजम्पशन था कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वहां पे एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और उसी रीजन से, उसी वजह से ये जो आपका फर्स्ट हाफ है वो जीरो से, मींस हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस मैक्सिमम हाइट को गेन करने का जो भी टाइम लेता है प्रोजेक्टाइल, सेम वही टाइम वो उस मैक्सिमम हाइट से फिर से हॉरिजॉन्टल सरफेस को अप्रोच करने में लेगा। मींस ये दोनों ही आपके जो टाइम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए हम सिर्फ एक पार्ट के लिए टाइम निकालते हैं और उसको ट्वाइस कर देंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, करेंगे कैसे? सो देखिए, आपको मालूम है कि एट मैक्सिमम हाइट, assumptions फिर से ऐसे ही लिखने हैं, let a projectile is projected with velocity u at an angle theta, ठीक है, with the horizontal. At maximum height, vertical component of velocity will be zero, but horizontal component of velocity will be equal to ux. इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। So क्या यूज करेंगे आप? At maximum height. At maximum height, vy is equal to 0, uy equals to u sin theta. Theta is the angle of projection and u is the initial velocity of projection. U sin theta. And if we are talking about the vertical component, then initial velocity should be a vertical component. That's why it is uy. Acceleration will be minus g again because it is vertical motion. We are talking about the vertical motion, upward, and the time taken to reach up to maximum height is small t. These are the four variables. और इनसे मिलके हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? इनसे मिलके आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। So using first equation of motion, v is equal to u minus gt, like this. v y is equal to uy minus gt, this one. vy at maximum height, vy will be 0. It is equal to ui is u sin theta
and minus gt. This implies gt is equal to u sin theta, and therefore t is equal to u sin theta upon g. u sin theta upon g. So ये जो आपका टाइम है, ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल अर्थ सरफेस यानी प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से स्टार्ट करता है और मैक्सिमम हाइट को अप्रोच करता है। ये वो टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। ठीक है, तो हमने ये टाइम निकाल लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब मुझे इस टाइम को ट्वाइस कर देना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट से अगर वो इस सरफेस पे वापस आना चाहता है तो उसको फिर से उतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी दिस टाइम फर्स्ट हाफ, दिस टाइम सेकंड हाफ। दोनों हाफ के जो टाइम है वो आपको ऐड कर देने हैं। तो आप उसको कैसे करोगे? देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैं इरेज करता हूं या इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। Therefore, total time of flight कैपिटल T is equal to, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल T। और कैसे निकालोगे? 2 times small t। सिंपल, स्मॉल t उसका मैंने ट्वाइस कर दिया, एंड व्हाट विल बी इट? 2 into u sin theta upon g। So capital T will be 2u sin theta upon g। हमारे लिए जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इट विल बी 2u sin theta upon g। यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, u is the velocity of projection, थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये एंगल हमने इस डायग्राम में किसके लिए लिया है? विद द हॉरिजॉन्टल, और इसीलिए यहाँ पे साइन आया है। अगर आप यहाँ पे थीटा वर्टिकल से ले लोगे तो ये आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व करके इस तरह देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो डेरिवेशन है वो इस डायग्राम, इस एंगल के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई पूरी? सो इट इज द डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन। क्लियर? यू कैन नोट इट डाउन। अब आप यहाँ पे एक और पॉइंट देख सकते हो, वो क्या हो सकता है? ये तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। दैट मींस ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जहां से आपने उसे प्रोजेक्ट किया था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग, स्टार्ट से एंड पॉइंट तक वो ट्रेवल करता है, और उसके ट्रेवल करने का जो टाइम है, टोटल टाइम, वही क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड इट इज 2u sin थीटा अपॉन g। क्या बता सकते हो कि वो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? वो हम लोगों ने निकाल लिया है। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया है? एंड दैट टाइम इज T is equal to u sin theta upon g। इससे पहले जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला है। आप इसका हाफ कर दोगे तो आपका क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर अप्रोच करने का टाइम हो जाएगा। ठीक है? नाउ दिस डायग्राम कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड by the projectile, maximum height attained by the projectile। same diagram, same assumptions means आप जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसके पहले आप उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, और वो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या है? let an object is projected at an angle u at an angle theta with velocity u, after certain time t it travels to its maximum height। अपनी maximum height को कुछ समय के बाद ये approach कर लेगा, and at the maximum height vertical component of velocity is 0। there exists only horizontal component of velocity, and that is ux। यही assumption आप लिखोगे। हम फिर से derivation start करें। so at maximum height के लिए vy will be 0। पहले से हम लोग ये जानते हैं इसको। Vy will be 0 at maximum height। Uy initial component of velocity will be u sin theta,
expression that we are going to use is minus g. Why it is? Because it is running upward and vertical distance is equal to h. h हाइट वो ट्रेवल करता है, h क्या है? वही यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो आप इनसे इन वैल्यू से मिलके कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहोगे? तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यूजिंग v square equal to u square minus 2gh. v square equal to u square minus 2gh. So vy square equal to uy square and minus 2gh. Vy will be 0. Uy is u square sin square theta. Is it clear? Uy is u sin theta. उसका स्क्वायर करोगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं and minus 2gh. Therefore h is equal to u square sin square theta upon 2g. For the maximum height, अगर आप मैक्सिमम हाइट की बात करते हो तो ये आपका एक्सप्रेशन है जो मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन को शो करता है। It is the expression for maximum height attained by the projectile. But what are the conditions? When the projectile is projected with velocity u and at an angle theta with the horizontal. This maximum height is attained only if when the projectile is projected with velocity u, small u, and at an angle theta with horizontal. तब आपका जो height attained होगा that will be u square sin square theta upon 2g. Is that clear? But आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव पीएमटी वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया है और आपके पास ऑप्शन है, आप उसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप उसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किसी भी एंगल में प्रोजेक्ट करिए। तो क्या आप बता सकते हो कि उस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए वो किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा? क्वेश्चन समझ आया? एक गिवन वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट यानी जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे प्रोजेक्ट करने के बाद गेन करेगा? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट फॉर अ गिवन वेलोसिटी? ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें एक एजम्पशन चूज करना होगा। क्या है वो एजम्पशन? तो हम यहाँ पे जो एजम्पशन लिख सकते हैं वो क्या हो सकता है? For a given velocity of projection small u, for a given velocity of projection small u, height attained will be maximum only if sin theta is equal to +1। अगर sin थीटा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, इन दैट केस आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है उसके लिए हाइट अटेन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और उसका रीजन है कि हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। Due to this relation, height for a given velocity, for this given velocity, height will be maximum only if when sin square theta becomes 1. So sin theta is equal to 1, या फिर अगर आप sin square theta लिखना चाहते हो ये आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं sin theta is equal to +1 अगेन। ठीक है, ये कब हो सकता है? sin theta is equal to 1, sin में किस एंगल के लिए वैल्यू होती है? तो आपको मालूम है, इट इज फॉर sin 90 and therefore theta equals to 90. What it means? It means that for a given velocity, the projectile will attain maximum height if it is projected at an angle 90 degree with the horizontal.
मींस अगर आपने किसी बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से 90 डिग्री पे थ्रो किया है, उसी बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 डिग्री पे थ्रो किया है, तो which one will be the maximum height? At which condition? It will be at 90 डिग्री। आप 90 डिग्री से जब थ्रो करोगे तो वो मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। Is that clear? तो अगर आपके मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया, तो क्या हम ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट फॉर अ गिवन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? थीटा शुड बी 90 या sin स्क्वायर थीटा इज +1। Therefore, maximum height h max will be equal to, what is the formula? U square sin square theta upon 2g. It was the formula, and we know that for the given velocity height will be maximum only if sin square theta is +1. That means h max is equal to u square upon g. Why it is? Because sin square theta become 1. तो sin square theta जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए ये जो आपका h max है वो गिवन वेलोसिटी पे मैक्सिमम हाइट को शो करेगा। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखो एंगल आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एंगल गिवन नहीं है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन नहीं है और आपसे मैक्सिमम हाइट पूछता है बट वेलोसिटी इज गिवन, देन इसका मतलब ये है कि वो उस वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम हाइट को गेन करने की बात करता है। उस वेलोसिटी के लिए वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। इज दैट क्लियर? तो आपको ये भी समझ में आ गया, फॉर अ गिवन वेलोसिटी एंगल शुड बी 90 डिग्री फॉर द मैक्सिमम हाइट। सो h max फॉर अ गिवन वेलोसिटी। क्लियर? नाउ व्हाट, इसको हम एप्लीकेशन में भी देखते हैं। जैसे एक एथलीट है और जो हाई जंप एथलीट है, हाई जंप एथलीट की टेंडेंसी है कि वो कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम हाइट को अप्रोच कर सके। तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो रन करता हुआ आएगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वो अपने आप को 90 डिग्री पे थ्रो करने की कोशिश करता है। क्यों? ड्यू टू दिस रीजन, अगर वो उस वेलोसिटी के लिए अपने आप को 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेगा तो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा। और 90 डिग्री पे उसने थ्रो किया है, कैसे? तो वो मेजर नहीं करता है कि हम हाँ ठीक है ऐसे आ रहे हैं तो इस एंगल पे हमें जाना है, वो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस से होता है। इसीलिए ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने गिवन वेलोसिटी से उसको परपेंडिकुलर एकदम वर्टिकल आपने थ्रो किया 90 डिग्री पे और सरफेस पे 90 डिग्री पे, तो वो कंपैरेटिवली मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा फॉर एनी अदर एंगल्स। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। Okay. Now the next term is range of the projectile, horizontal range. Horizontal range. So expression for horizontal range. Expression for horizontal range. What is horizontal range? The point of projection O and the point of landing O dash. This horizontal distance is known as range or horizontal range. It is expressed by कैपिटल आर। आप उसको किससे शो करते हो? कैपिटल आर से शो करते हो। तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये है कि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जैसा लिखा भी हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज है इसे कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है ये क्यों कवर करेगा? ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और अगर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये रेंज कवर करता है तो आपको ये भी मालूम है कि जो आपकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। दैट मींस इट इज कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट है तो एक्वेशन 0 होगा। मींस आप इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? हम वही फॉर्मूला यहां पर यूज करने जा रहे हैं। assumptions फिर से वही होंगे, and a projectile is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal. ठीक है, so after time t it travels a distance o dash, that is horizontal range capital R. Distance is equal to speed multiplied time.
डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए मैंने स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लिख दिया है। अब डिस्टेंस क्या है? रेंज, यही आप कैलकुलेट करना चाहते हो। व्हाट इज द स्पीड? ux हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब आप टाइम कौन सा कंसीडर करोगे? व्हाट इज द टाइम है? प्रोजेक्ट करने के बाद और लैंड करने से जस्ट पहले, ये पूरा टाइम को इंक्लूड करता है ये इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। एंड व्हाट इज दिस टोटल टाइम? इट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, द ड्यूरेशन फॉर व्हिच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। ये वो टाइम है जो मुझे इस रेंज के कैलकुलेशन में चाहिए, यूज करना है। हम वही टाइम यूज करने जा रहे हैं। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दैट टाइम? कैपिटल टी, अभी हम टी लिख देते हैं। सो r इक्वल्स टू, हम सबकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, u cos थीटा सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हो गया। एंड व्हाट इज कैपिटल टी? 2u sin थीटा एंड अपॉन g, इट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हम यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। सो आपको क्या मिलेगा? 2u into u स्क्वायर cos थीटा into sin थीटा cos थीटा, ये ऐसे आ गया अपॉन g। आप देखो तो आप इसको लिख सकते हो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा एंड अपॉन g, आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको ये एक्सप्रेशन, ये जो 2 sin थीटा cos थीटा, ये रिलेशन याद होगा। आप इसको क्या कहते हैं? यू कैन राइट हियर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। So capital R range can be expressed as u square sin 2 theta upon g. u square sin 2 theta upon g। फिर से हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो आपका रेंज है वो तभी आएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करोगे। अगर आपने उसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया है, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी u square sin 2 theta upon g. Is that clear? So for any given velocity u, for any given angular projection theta, the range traveled is u square sin 2 theta upon g. u square sin 2 theta upon g, ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर आप मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो, इन दैट केस अगेन sin 2 theta will be +1 and it is only if theta is 90 degree, so sin 2 theta will be equal to sin 90, 1 की जगह आप sin 90 मेंशन कर सकते हो, implies 2 theta is equal to 90 degree and therefore theta will become 45 degree. If any object या any projectile is projected with velocity u and projected at an angle theta equals to 45, then it, for this velocity it will cover the maximum range. For this velocity u, it will cover the maximum range only if theta is 45. Means velocity angle of projection is 45 degree. Okay? ठीक है, तो हम यहाँ से मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला? चलिए देख लेते हैं कि ये आपका जो रेंज है थीटा इज इक्वल टू 45, therefore r max is equal to यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, sin थीटा इज 45 डिग्री u स्क्वायर sin 2 into 45 and upon 2g, sorry g, clear? u square sin 90 and upon g, it is equal to u square by g. So capital R is equal to u square upon g. U is the initial velocity, that is velocity of projection, and for this projection maximum range, possible maximum range will be u square by g. अब इसके लिए आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे एक राइफल है और उस राइफल से हमें बुलेट फायर करनी है। उस राइफल से अगर मुझे बुलेट फायर करनी है तो क्वेश्चन है कि उस राइफल से मैक्सिमम रेंज उस बुलेट की क्या हो सकती है, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, एक ही राइफल है, उससे हम 1 किलोमीटर भी फायर कर सकते हैं। उसी राइफल से एक टारगेट है जो 500 मीटर्स पे, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कितना हो सकता है? तो
तो आपका जो टारगेट है, जो आपका मैक्सिमम रेंज निकालने का टारगेट होगा, वो कैसे निकालोगे, वो हम इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि राइफल एक पर्टिकुलर बुलेट को किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ही थ्रो करेगी। रेंज कुछ भी हो, 500 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, एनीथिंग, वो जो राइफल है वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब उस स्पेसिफिक वेलोसिटी से आपको जब बुलेट फायर करना होगा तो आपको डिसाइड करना है कि हमें रेंज कितनी चाहिए। 30 डिग्री करेंगे, रेंज कुछ और होगा, 40 डिग्री करोगे, रेंज कुछ और आएगा, 60 डिग्री करेंगे, रेंज कुछ और आएगा। इस तरह से आप जब उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोवाइड करोगे तो आपको वो डिफरेंट रेंज प्रोवाइड करेगा। बट फॉर द गिवन वेलोसिटी u, what should be the maximum range? maximum range u square upon g। ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज फॉर दिस वेलोसिटी। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों ही चीजें निकाल चुके हैं, और मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट दोनों ही आपके जो फॉर्मूले हैं वो u स्क्वायर या u के टर्म्स में ही आता है। ओके, फॉर गिवन वेलोसिटी small u, r max is equal to u square upon g, it is equation 1. h max is given u square upon 2g, equation 2. 1 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, so r max upon h max is equal to u square upon g, it is r max, and u square upon 2g, it is h max। तो आप देखोगे सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सो r max is equal to 2 times h। इस तरह से किसी गिवन वेलोसिटी के लिए हम मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट को रिलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैक्सिमम। हमें इसके लिए एक और चीज जानने की जरूरत है, और वो ये है कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, वेलोसिटी गिवन इज u, एंड और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मीन्स हमारे पास ये दो एंगल्स हैं जिनको बारी बारी से एक बार 1 by 1 हम उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। वेलोसिटी u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, वेलोसिटी u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा। सो क्वेश्चन इज, क्या इन दोनों ही कंडीशन में जब वेलोसिटी तो सेम है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके डिफरेंट है और इस तरह से रिलेटेड है, थीटा है, सेकंड वन इज 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या रेंज दोनों का ट्रेवल जो होगा वो सेम होगा? चलिए देखते हैं। फॉर एंगल थीटा, थीटा के लिए रेंज ट्रेवल्ड विल बी u स्क्वायर sin 2 theta upon g। फॉर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा? सो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा एंड अपॉन g। कुछ सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा एंड अपॉन g। सपोज ये हमारा r1 एंड इट इज r2। क्लियर? सो r2 इज u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा। तो क्या आपको मालूम है कि यहाँ पे 180 माइनस थीटा के रिलेशन से साइन कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? साइन किसी और, कॉस, टैन किसी में कन्वर्ट होता है, या फिर साइन को एज इट इज रख देते हैं। तो आपको याद होगा ये 180 के रिलेशन में साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। दैट मींस u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो अगर आप देखिए तो यहां से जो आपको 90 माइनस थीटा के लिए रेंज ट्रेवल्ड मिलता है r2, उसकी भी वैल्यू क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। एंड फॉर दिस एंगल थीटा रेंज इज आल्सो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हों और उनके लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिमेन सेम, अगर ऐसा है तो रेंज ट्रेवल्ड
will be same for both the angle of projection. Means r1 is equal to r2. But it is only if the velocity is same and the angle of projections are complementary to each other. Complementary is sum of the two angles will be 90. अगर ऐसा है तो दोनों की रेंजेस इक्वल. ये आपके सिंपल डेरिवेशंस थे फॉर द टर्म्स रिलेटेड विद एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो पैराबोलिक नेचर में था. आप उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो और उसी इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हो. टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड वन. Third one was maximum height attained by the projectile, and the last one was the range traveled by the projectile. Okay? Thank you.